د دې ننني ماښام چې د چا په اعزاز کې د چا په درناوي کې موږ را جوړ کړی دی هغه ډېر معتبر جرنلسټ ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري ښاغلي ډاکټر جاوید اقبال لا د سایل صاحب په دې شعرونو ما د راتلو بلنه ورکوم چې ما پکې تل د پرهرونو جامې واچولې ما پکې تل د پرهرونو جامې واچولې په دې کوڅو کې ملنګي داسې اسانه نه وه او ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده خدای خبر ولې رسېدلې در جانانه نه وه ډاکټر جاوید اقبال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم کونسل جنرل صاحب سمر جاوید رانا صاحب جمیل اقبال صاحب ممتاز صاحب ڈاکٹر صاحب رفیق ناصر صاحب شاہ سوار صاحب ہمارے بہت اچھے دوست پشاور اور پاکستان سے ڈاکٹر نیاز علی صاحب نزار یوسف زئی صاحب حاجی میر حسن صاحب بہت ہی محترم وحید پال صاحب عبداللہ خان صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم جتنی عزت افزائی آپ لوگوں نے مجھے دی ہے میں ایک بہت چھوٹا صحافی ہونے کی حیثیت سے یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور ایک بہت بڑی بات متحدہ عرب امارات سے اس کو چھوڑے ہوئے تقریباً آپ سمجھیں کہ 7 سال ہو چکے ہیں لیکن میرے فٹ پرنٹس اور میرا تعلق اور میری دوستیاں میری رشتہ داریاں اور میرا جو سمبند ہے یہاں سے اتنا مضبوط ہے کہ میں ہر کچھ عرصے کے بعد یہاں لازمی آتا ہوں باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں ہم ٹریول کرتے ہیں اور جاتے ہیں آفیشل وزٹس میں جاتے ہیں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے جاتے ہیں بہت سے دوست جب بھی کچھ تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو میں یہاں چلا آتا ہوں اب اس بار بھی جب میں آ رہا تھا تو بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ اگر گھومنے ہی جانا ہے تو کہیں اور چلے جائیں آپ تو میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ جتنی محبت جتنی اپنائیت مجھے یہاں سے ملتی ہے وہ شاید دنیا میں کہیں سے مجھے ملتی ہوگی تو اس لیے جب بھی وقت ملتا ہے میں یہیں آتا ہوں یہیں اپنے لوگوں سے ملتا ہوں اپنے ساتھیوں سے ملتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے ملتا ہوں آپ سب لوگوں سے جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی وحید پال صاحب نے اور باقی جمیل اقبال صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا 2002 سے 2009 تک میں یہاں رہا اور آپ میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن سے میرا انٹریکشن بھی ہوتا رہا میری ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں ہر چند کے بہت سی جگہوں پہ بہت سی مصروفیات میں کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک پرائیویٹ میڈیا جیو آیا 10-12 گھنٹے ہم ٹرانسمیشنز کرتے رہے لیکن اس کے باوجود جب بھی مجھے آپ بھائیوں نے بلایا تو میں حاضر اسی وجہ سے ہوا کہ یہ جو محبتیں ہیں یہ جو اپنائیت ہے یہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے دنیا میں جو آپ کو بلاتا ہے جو آپ کو مہمان بناتا ہے وہ دراصل آپ کو عزت دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس عزت کو اپناتے ہیں اور اس عزت کو حاصل کرتے ہیں تو میں یہ جو آپ نے میری عزت افزائی کی ہے اور آج تمام آپ لوگ دیکھیں اس ملک میں رہتے ہیں تمام مصروف لوگ ہیں کچھ نوکریوں پہ ہیں کچھ اپنے کاروبار سے منسلک ہیں یہ بہت مصروف وقت ہوتا ہے یہ آپ کا ایک ویکنڈ ہوتا ہے آپ نے وہ ویکنڈ کہ اتنے گھنٹے مجھے دے دیے اور میرے لیے صرف کر دیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات میرے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتی اس سے بڑی عزت افزائی میرے لیے کوئی ہو نہیں سکتی تو میں آپ سب لوگوں کا خصوصی طور پر تمام لوگوں کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی سمر جاوید صاحب سے بیٹھے ہوئے ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ 2 چیزیں مشترک ہیں ایک تو ان کے نام میں بھی جاوید ہے میرے نام میں بھی جاوید ہے پھر
उनकी जो स्पेशलिटी है वो भी बायोकेमिस्ट्री है और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो भी बायोकेमिस्ट्री है। तो ये दो चीजें मुझ में और समर जावेद राना साहब में मुश्तरक हैं। लेकिन जाहिर है कि वो फॉरेन अफेयर्स की तरफ चले गए। अब मेरा जो इंटरेस्ट था वो सहाफत के साथ था, जर्नलिज्म के साथ था, तो मैं इस फील्ड में आ गया। बात सहाफत की हो रही थी और बात जर्नलिज्म की हो रही थी। 2009 में हम यहां से गए और उसके बाद हम न्यूज से करंट अफेयर्स में आए। रोजे अव्वल से मैंने अपनी जिंदगी का और अपनी प्रोफेशन का और अपनी सहाफती जिम्मेदारियों का ये उसूल बना लिया कि एक तो मुझे मस्बत जर्नलिज्म करनी है। मस्बत जर्नलिज्म हम किसे कहेंगे? मस्बत जर्नलिज्म हम इसे कहेंगे कि अपने लोगों का, अपने मुल्क का और अपनी कौम का एक मस्बत इमेज पूरी दुनिया के सामने हमने रखना है, जिसकी हमें जरूरत है। देखें, दुनिया के बहुत से ममालिक में बहुत तरह के वाकयात हो रहे हैं। गुज़श्ता 10-12 साल में हमारे मुल्क पाकिस्तान ने एक बहुत सख्त वक्त गुजारा है। न सिर्फ हमारे सूबे ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, कबायली इलाका जात से सिलसिला शुरू हुआ, खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचा और उसके बाद पूरे मुल्क में फैल गया। दहशत गर्दी के वाकयात होते रहे, मासूम जानें ज़ाया हुई, हमारे फौजी शहीद हुए, हमें $100 अरब का हमारी मईशत को नुकसान हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत महफूज हाथों में हैं। आज वहां की सिविल और अस्करी जो क़यादत है वो कम से कम इस लिहाज से जरूर एक सफ़े पर मौजूद है कि हमें इन तमाम मामलात से आगे निकलना है। हम में जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों पर हमने काबू करना है, काबू में लाना है उन कमजोरियों को, और हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि हम जहां कहीं भी देखें, आप लोग भी पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, आप लोगों का भी इंटरेक्शन होता है और आप यहां पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की खिदमत आप ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसकी मैं आपको ये मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप लोग ज्यादा खिदमत कर रहे हैं। आप लोग सफीर हैं, आप तमाम एक एक शख्स सफीर है अपने मुल्क का, अपनी मुल्क की इज्जत का, अपने मुल्क के इमेज का। आप लोग यहां एक छत तले जमा हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, आज बहुत खुशी हुई कि देखें, हम वहां पे बैठ के, टेलीविजन पे बैठ के मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को अपने प्रोग्राम्स में बिठा के, अपनी स्क्रीन पर ला के उनके नजरियात भी सुनते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं और उनके इख्तिलाफात को भी सुनते हैं। लेकिन यहां आज मैंने देखा कि तमाम एक छत तले जमा हुए, मीर हसन साहब, वहीद पाल साहब, अब्दुल्ला साहब, ये तमाम के तमाम एक छत तले मौजूद हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये आज हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक फख्र की बात है कि हमने अपने सियासी नजरियात को बाला ताक रखा और आज हम यहां पर इकट्ठे हुए, जिसके लिए मैं एक बार फिर जमील साहब, मुमताज साहब, रफीक नासिर साहब और इन तमाम साथियों को कि जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, किसी न किसी तरह से वो इसका हिस्सा बने, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो मैं बात कर रहा था कि आप लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वो पाकिस्तानी जो इस वक्त गल्फ के ममालिक में, जो अरब कंट्रीज हैं, गल्फ स्टेट्स में रहते हैं, और जिस जर्रे मुबादला को हमारी हुकूमतें, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, सीना तान के वो बैठ के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमारे वजीर खजाना ये कहते हैं कि आज हमारे रिजर्व $20 अरब हो गए हैं, और आज ही इसहाक डार साहब ने कहा कि हमारा टारगेट इसको $30 अरब तक पहुंचाने का है। और ये जो जर्रे मुबादला है, ये वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग जो पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, ये दरअसल उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो गल्फ ममालिक में जो आप लोग मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जो जर्रे मुबादला भेज रहे हैं वो आप लोग भेज रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो नहीं, वो वहां पे नेशनल हैं, वो इमेज के सफीर हैं पाकिस्तान के। लेकिन आप वो लोग हैं, ये सऊदी अरब से लेके यूएई तक, यूएई से बहरीन, कतर, ये तमाम, कुवैत, ये जो असल लोग हैं, ये पाकिस्तान की, आप लोग पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूं कि यहां बैठ के भी आप अपने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं।
मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अजीम जज्बा है जिसे हमें हमेशा के लिए लेकर चलना है। हमारी जिम्मेदारी, सहाफियों की जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान के बेहतर इमेज को और पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें हैं। चाहे हम कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम अपनी स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उन लोगों को एक्सपोज करें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, या जो हम में बैठकर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी तय जितनी भी मुख्तसर कोशिश रही इन 10-12 सालों में, 2002 से जब से हम इस प्राइवेट मीडिया में हैं, हमने ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ, मेहनत के साथ, दयानतदारी के साथ कोशिश की है कि एक मस्बत जर्नलिज्म करें। पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं वो भी अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं, उनका हल भी अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं, लेकिन इसके साथ साथ जहां हमें मौका मिले हम पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो ये मुख्तसर सी कुछ बातें थी जो मैं आपके गोशगुजार करना चाह रहा था। मैं एक बार फिर तहे दिल से आप तमाम साथियों का, खवातीन का, बच्चों का जो आए, सरदार जी एक बैठे हुए हैं, उन सरदार साहब का भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए आए। सरदार साहब जो है पेशावर से उनका ताल्लुक है, ये जबरदस्त बात है। हाजी मीर हसन साहब का बहुत मशकूर हूं जो कल ही पहुंचे हैं पाकिस्तान से, अपनी सियासी मसरूफियात, अपने चेयरमैन से मुलाकात करके आए, लेकिन उसके बावजूद वो आए। वहीद पाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। चौधरी खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम साहब जिलाला, उनके नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कवरेज भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। करीम आफरीदी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज़ यूसुफ जई साहब और जमील इकबाल साहब का तो मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान से लेके यहाँ तक वो मेरी टेक केयर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करते रहे, मुझसे राब्ते में रहे और अवेलेबिलिटी का पूछते रहे। तो मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम ख़वातीनो हज़रात का मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे कमज़ोर और नातवां सहाफ़ी के लिए आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला कि मैं ज़िंदगी भर आपकी इस मोहब्बत को नहीं भूलूंगा और मुझे भूलना भी नहीं चाहिए। और आपके साथ मेरा ताल्लुक रहेगा, आपके साथ मेरा राब्ता रहेगा और मैं आपके पास आता जाता रहूंगा। और मेरे लायक एक सहाफ़ी की हैसियत से जो भी आप मुझ पे खिदमत डालना चाहेंगे तो मैं उसके लिए हमेशा से हाजिर रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मंगा चिचतरा प्रोग्राम कहूँ